Good morning, everyone. Now we are commencing with MCQs on financial derivatives. Right, so we've discussed lots of multiple choice questions in our previous lectures. Let us start with this new file MCQ, which is based on forward contracts, right? Then you will have questions on futures, options, swaps and all. So let us start with the first question, which says that a forward contract is a contract that involves a long position only or a short position only. Okay, forward में long and short दोनों हो सकती है, केवल long या केवल short नहीं होती है. एग्रीमेंट बिटवीन अ बैंक एंड फेड, नो, जरूरी नहीं कि फॉरवर्ड सिर्फ बैंक और फेड के बीच में हो. इट कुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन अ बैंक एंड अनदर बैंक, right? It could be an agreement between two financial institutions or two HNI, high net worth individuals. So forward contract could be between any two parties. Fourth option है an agreement by two parties to engage in a financial transaction at a future point in time. So this option is absolutely correct, option number D. So it's an agreement, ये इसका definition भी है. It's an agreement between two parties to engage in a financial transaction at a future point in time, right? So they are very much similar to futures. The difference is that futures are regularized in stock markets while forwards are not regularized in stock markets. Number 2, which of the following are not characteristics of an interest rate forward contract? इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का? स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ द ट्रांजैक्शन, ये पहला ही पॉइंट है जो कि इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि उसमें प्लेस ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में स्पेसिफाई नहीं किया जाता. अमाउंट होता है, प्राइस इंटरेस्ट रेट होती है, एक्चुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट भी होता है, लेकिन प्लेस ऑफ ट्रांजैक्शन रेफर नहीं किया जाता. Number 3, which of the following is not a problem with interest rate forward contract? इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो प्रॉब्लम नहीं है इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का? लो इंटरेस्ट रेट्स, डिफॉल्ट रिस्क, लैक ऑफ लिक्विडिटी, फाइंडिंग अ काउंटर पार्टी, ये सारे तो प्रॉब्लम्स हैं. डिफॉल्ट रिस्क भी होता है, ये भी एक प्रॉब्लम है. लैक ऑफ लिक्विडिटी इज अ प्रॉब्लम. काउंटर पार्टी को लोकेट करना, वो भी सामने वाली पार्टी को लोकेट करना, वो भी मुश्किल है. लो इंटरेस्ट रेट, ये प्रॉब्लम नहीं है. सो फर्स्ट पॉइंट इज द राइट आंसर. फोर्थ, द प्राइस ऑफ ए फाइनेंशियल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट विल बी सेम एज द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट टू बी डिलीवर्ड, नो, नॉट नेसेसरी. विल बी लेस then the price of the underlying asset at the expiration date, जरूरी नहीं कमी हो, will be greater, ये भी जरूरी नहीं ज़्यादा हो. will be same as the price of the underlying asset at the expiration date. तो आपको याद रखना है कि price of a financial futures contract will always be same as the price of the underlying asset at the expiration date. ये पहले भी डिस्कस किया गया है और ये क्वेश्चन क्योंकि पहले भी आ चुका है, सो आई कंसिडर दिस वन एज एन इम्पॉर्टेंट वन, राइट? मार्क माई वर्ड्स, दिस फोर्थ वन, ऑल्दो जो कर रहे हैं वो दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट, बट दिस इज समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट दैन एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस. नंबर 5, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर मोर सक्सेसफुल देन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज they are more liquid. ये ध्यान रखिएगा, they are more liquid. Forward contracts, they are less liquid, while future contracts are more liquid, right? Okay, so let's move on to the next slide. Question number 6. A forward foreign exchange contract is now a violation, no. Is based upon the current spot exchange rate, नहीं. Exposes the buyer टू एक्सचेंज रेट रिस्क, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि बायर को कभी कभी रिस्क से बचा भी लेता है यूजिंग हेजिंग. अलाउज अ बायर टू परचेज अ क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू बी डिलीवर्ड इन द फ्यूचर. दिस इज द राइट आंसर. A forward foreign exchange contract allows a buyer
to purchase a quantity of foreign exchange to be delivered in the future. ये इसका मेन डेफिनेशन दी है. It allows a buyer to purchase a quantity of foreign exchange to be delivered in the future. An option gives the purchaser a right to buy or sell an underlying asset at a strike price. First option absolutely correct. That can be exercised at any time is European option. जो any time exercise कर लें वो आप लोगों को याद होगा, वो होती है American option, right? और जो केवल expiry पे वो होती है exercise, that is European option. Must be exercised by the owner. That can be exercised only at the expiration date is called an American option. नहीं, उल्टा दे दिया. पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है. It gives the purchaser a right but not the obligation to buy or sell an underlying asset at a strike price. Number 8, a call option is same as American option. No, call option could be European option also. Gives the owner a right to sell a financial instrument at the exercise price within a specific period of time. Gives the owner a right to buy. Remember, it's a right to buy. Call option की बात हो रही है. ये जो right to sell है ये मिलता है put option से. So make your fundamentals absolutely right. Call option gives the owner a right to buy a financial instrument at the exercise price within a specific period of time. Options are regulated by Fed, FDIC, SEC, CFTC. Right. So this is the right answer. 4 options आप लोगों को दिए हुए हैं. Right. इन चारों options को पहले तो ध्यान से पढ़िएगा. ये पूछ रहे हैं कि आपके जो options हैं they are regulated by. So you got 4 options: SEC and CFTC. First option Fed and FDIC. Then you've got FDIC and Treasury Departments. तो आपको याद रखना है कि ये जो CFTC है, it is Commodity Futures Trading Commission. So I am writing the full form: Commodity Futures Trading Commission. तो ऑप्शन इनके थ्रू रेगुलेट की जाती हैं, राइट. और SEC होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन. तो SEC इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन. तो SEC एंड CFTC आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज CFTC वो ऑप्शन और फ्यूचर्स दोनों का ही जो रेगुलेशन है वो कंडक्ट करता है. सो इट्स एन इंडिपेंडेंट एजेंसी, राइट, दैट रेगुलेट्स कमोडिटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स. तो ऑप्शंस आर रेगुलेटेड बाय SEC एंड CFTC. नंबर 10, which of the following does not generate a high premium on call options? A lower strike price, a more liquid underlying asset. तो ये जो more liquid underlying asset है वो जनरेट नहीं करता है हायर प्रीमियम. ग्रेटर टर्म टू मैच्योरिटी, इसमें हाई प्रीमियम जनरेट हो जाता है, राइट. वोलेटिलिटी ये भी इंक्रीज करती है प्रीमियम को. और लोअर स्ट्राइक प्राइस, राइट. तो ये सारी चीजें हाई प्रीमियम को कमांड करती हैं, लेकिन मोर लिक्विड अंडरलाइंग एसेट इट डज नॉट जनरेट अ हाई प्रीमियम as far as call options are concerned. So we move on to number 11. Please pay attention on number 11. An American option can be exercised at any time up to its expiration date. ये आप लोगों को पहले भी बताया गया है. तो अगेन ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है. So this is also important one. American option can be exercised at any time. और जो ऑप्शन केवल एक्सपायरेशन डेट पर एक्सरसाइज की जाती है दैट इज कॉल्ड एज यूरोपियन ऑप्शन.
वो यूरोपियन होती है. American option can be exercised at any time up to its expiration date. Compared to the buyer of a futures contract, the buyer of an option contract on the same financial instruments generally will make smaller gains or smaller losses, larger gains or larger losses, larger gain or smaller losses. Then you have fourth option, smaller gain और larger losses. नहीं, larger losses तो होते ही नहीं है खैर, राइट. लेकिन सेम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर ऑप्शंस अगर देखा जाए तो स्मॉलर गेन्स होते हैं और स्मॉलर लॉसेस होते हैं. सो यू हैव स्मॉलर लॉसेस ऑन ऑप्शंस ऑन द सेम एसेट. एसेट अगर सेम है तो फिर फ्यूचर्स के मुकाबले स्मॉलर गेन और स्मॉलर लॉसेस होते हैं. एसेट्स अलग हो तो लॉसेस तो फिर भी स्मॉलर रहेंगे, गेन्स हायर हो सकते हैं if the assets are different. नंबर 13. तो नंबर 13 पर चलते हैं. मूविंग ऑन टू नंबर 13. Which of the following is not an advantage of using interest rate swaps to eliminate interest rate risk? It's not an advantage. Financial institutions can engage in the types of lending to avoid the transaction costs. They can be written to cover time horizons. They entail no default risk. Now it is not an advantage. They entail no default risk. तो 4 ऑप्शंस हैं इसके अंदर आपके पास, और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो इसका एडवांटेज नहीं है, दैट इज इट डज नॉट एंटेल एनी डिफॉल्ट रिस्क. एंटेल का मतलब होता है टू मेक समथिंग नेसेसरी, टू इन्वॉल्व समथिंग, राइट. तो किसी चीज़ को असेंशियल बनाना वो एडवांटेज नहीं है इसका इंटरेस्ट रेट स्वैप्स का, टू एलिमिनेट इंटरेस्ट रेट रिस्क. बाकी सारे एडवांटेजेस हैं कि दे कैन बी रिटर्न टू कवर टाइम होराइजंस. तो टाइम होराइजंस को कवर कर लेते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अवॉइड किया जा सकता है. इट इज़ ऑल्सो एन एडवांटेज. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन एंगेज इन टाइप्स ऑफ लैंडिंग फॉर विच दे हैव एडिशनल इंफॉर्मेशन. तो वो सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन ये किसी चीज़ को असेंशियल बना देते हैं डिफॉल्ट रिस्क से रिलेटेड. इट्स नॉट एन एडवांटेज. नंबर 14, हेजिंग. हेजिंग के बारे में आपको बताया हुआ है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क और एलिमिनेटिंग रिस्क बाय एंगेजिंग इन अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दैट ऑफसेट्स अ पोजीशन ऑलरेडी टेकन. सो फर्स्ट इज द राइट आंसर. बाकी पे ऑफ्स, सॉरी, प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क बाय बाइंग रिस्क फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड्स. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप केवल गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही बाय करो. आप कई कमोडिटीज़, कुछ एसेट से भी हेजिंग कर सकते हैं. डाइवर्सिफाई नहीं करना होता है. इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स. नो, इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क. तो हेजिंग ध्यान रखना है आपको. इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग रिस्क. नंबर 15, द पे ऑफ्स फॉर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आर लिंक्ड टू प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज. ये हमेशा प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज पर ही पे ऑफ्स यानी प्रॉफिट्स डिसाइड किए जाते हैं. फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स इंक्लूड फ्यूचर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स. नन ऑफ द अबव नहीं. फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स इंक्लूड फ्यूचर्स. अगेन फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स इंक्लूड स्टॉक, बॉन्ड, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. स्टॉक और बॉन्ड तो आपको पता है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स नहीं होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल डेरिवेटिव? फ्यूचर्स होते हैं, ऑप्शंस भी होते हैं, फॉरवर्ड्स होते हैं. तो कौन सा नहीं है? इट इज स्टॉक. तो आपको ध्यान रखना है. आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल डेरिवेटिव, ये नहीं पूछा है. आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइनेंशियल डेरिवेटिव. नंबर 19, तो कौन सा नहीं है? स्टॉक नहीं है. नंबर 19 है डेरिवेटिव्स आर प्रोडक्ट्स whose value is derived from one or more basic variables called underlying assets. बिल्कुल सही है ये इंफॉर्मेशन.
फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स प्रोवाइड अ पावरफुल टूल फॉर लिमिटिंग रिस्क, या फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की हेल्प से आप हेजिंग भी कर सकते हैं, तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ अगेन देयर आर सम MCQs, और इन MCQs के अंदर कुछ MCQs आपके ट्रू और फॉल्स भी आ सकते हैं. सो बी रेडी फॉर ट्रू और फॉल्स कैटेगरी क्वेश्चंस विच यू कैन हैव इन योर फाइनल एग्जामिनेशंस. MCQ मतलब ये नहीं कि केवल 4 ही होंगे, उनमें से आपको एक का सही जवाब देना है. आपके पास 2 ऑप्शंस भी हो सकते हैं, कुछ केसेस में हो सकता है फिल इन द ब्लैंक भी आ जाएं. बट एनीवे we'll start with number 1 of file number 2. Call options are most profitable for the buyer when the underlying instrument moves up. हाँ, कॉल ऑप्शन मतलब आपने राइट टू बाय अर्न कर रखा है, तो स्टॉक अगर मूव अप करेगा तो फायदा होगा. मेकिंग द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट क्लोजर अबव द स्ट्राइक प्राइस. सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. अंडरलाइंग एसेट इंस्ट्रूमेंट जितना मूव अप करेगा उतना ही प्रॉफिट बढ़ता चला जाता है. नंबर 2, स्टैंडर्डाइज्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिस्ट फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंग एसेट्स एक्सेप्ट. जो स्टैंडर्डाइज्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंग एसेट्स एक्सेप्ट स्टॉक इंडेक्सेस, गोल्ड, ट्रेजर्स, कॉमन स्टॉक्स. Except these standardized future contracts exist for all. सभी के लिए होते हैं, स्टॉक इंडेक्सेस के लिए भी, गोल्ड के लिए भी और ट्रेजरी बॉन्ड्स के लिए भी. Which of the following is false? आपको बताना है इन सब में से false कौन सा है. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स allow fewer delivery option than forward contracts. ये पहला ही गलत है. अपोजिट है बल्कि, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अलाउज लिमिटेड और फ्यूअर डिलीवरी ऑप्शंस. राइट, बाकी तो सब सही है. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड ऑन फाइनेंशियल एक्सचेंज, बिल्कुल ठीक है. दे आर मोर लिक्विड, वो भी सही है. एंड दे आर मार्क टू मार्केट, ये आपको बताया था. दे आर MTM, मार्क टू मार्केट. नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस विल ऑफसेट अ लॉन्ग पोजीशन इन अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट दैट एक्सपायर्स इन जून. तो आपको ऑफसेट करनी है लॉन्ग पोजीशन. लॉन्ग मतलब इफ यू हैव एग्रीड टू बाय, तो उसको ऑफसेट क्या करेगा. अगर बाय यू आर प्लानिंग टू बाय, यू नो, लॉन्ग का मतलब होता है टू बाय इन फ्यूचर, तो उसको ऑफसेट कर सकता है उसका अपोजिट सेल. और सेल भी कौन सा, सेल अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट दैट एक्सपायर्स इन जून, क्योंकि जून का कॉन्ट्रैक्ट है. तो अगर आपने बाय कर रखा है तो उसको ऑफसेट करेगा सेल. मंथ जून होना चाहिए, रिगार्डलेस नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है. सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. कि अगर आपने बाय कर रखा है तो बाय को ऑफसेट करेगा सेल. जिस मंथ का कॉन्ट्रैक्ट हो उसी मंथ के कॉन्ट्रैक्ट से ही वो ऑफसेट हो सकता है. ऑफसेट मतलब रिस्क को स्क्वायर ऑफ करना. नंबर 5, the OTC deals with the consequence of discussion and negotiation between two counterparties without the interference or regulation of a market exchange. So over the counter OTC का full form है. It is absolutely true कि OTC deals are the consequences of discussion and negotiation between two counterparties. और forwards इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है जहां पर मार्केट एक्सचेंज का कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है. सो इट इज बिटवीन टू काउंटर पार्टीज. सो दैट इज व्हाई उसको OTC यानी ओवर द काउंटर ट्रेड भी बोला जाता है. सो दे आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिस्कशन एंड नेगोशिएशन बिटवीन टू काउंटर पार्टीज एंड द बेस्ट एग्जांपल्स आर फॉरवर्ड्स व्हिच आर जनरली डन OTC ओवर द काउंटर. नंबर 6, which of the following does the most to reduce default risk. default risk हमेशा MTM से रिड्यूस किया जाता है. तो आप देखो हाई लिक्विडिटी MTM, ये मार्किंग टू मार्केट, इसी से ही डिफॉल्ट रिस्क को कम किया जाता है, क्योंकि मार्क टू मार्केट के अंदर डेली जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो एस्टिमेट कर लिया जाता है. सो मार्क टू मार्केट इज
the concept which reduces default risk for future contracts. 7. Which of the following is most similar to a stock broker? Futures commission to merchant, pit trader, floor, local no. It is, futures commission merchant. It is very similar to a stock broker. Futures commissions merchant. Number 8. Using futures contract to transfer price risk. जब भी रिस्क की बात होगी ना, वो हमेशा hedging बोला जाता है. So hedging is the right answer. Using future contracts to transfer price risk. तो प्राइस रिस्क को ट्रांसफर यानी रिड्यूस कर दिया जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हेजिंग एंड हेजिंग इज डन बाय यूजिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. तो जब भी रिस्क को ट्रांसफर, रिड्यूस, एलिमिनेट करने की बात आएगी, सो दैट इज ऑलवेज द कांसेप्ट ऑफ हेजिंग. राइट, तो रिस्क को कम क्या करना है, हेजिंग. आर्बिट्राज एक अलग, डाइवर्सिफाइंग तो होता है. किसी आपके पास मान लीजिए आज की डेट में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, तो आप किसी और मेटल में कर देंगे या रियल एस्टेट में कर देंगे. बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट है तो हो सकता है आप एफएमसीजी में डाल दें. डाइवर्सिफाई करना मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को चैनलाइज कर देना. स्पेक्युलेटिंग का मतलब है आप एस्टिमेट करते हो कि प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, तो एक तरह से सट्टा लगाना, वो स्पेक्युलेट करना होता है. आर्बिट्राज का मतलब होता है प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी ढूंढना, प्रॉफिट अर्न करना सेम एसेट के ऊपर. एक मार्केट में बाय करना, दूसरे में उसको सेल कर देना, और जो उनकी प्राइस डिफरेंस से जब आप प्रॉफिट अर्न करते हैं, वो ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, तो उसको बोला जाता है आर्बिट्राज. सो whenever we ask about reducing or transferring the risk, that is always done by hedging. तो इस क्वेश्चन नंबर 8 से आपको 4 नए टर्म पता लग गए. हेजिंग, स्पेक्युलेटिंग, एंटिसिपेट करना कि प्रॉफिट बढ़ेगी प्राइस या घटेगी प्राइस. आर्बिट्राज, प्राइस डिफरेंस देखकर सेम एसेट के ऊपर प्रॉफिट कमाना. और डाइवर्सिफाई का एग्जांपल दिए ही है आपको कि अगर आपके पास किसी मेटल में इन्वेस्टमेंट है, तो हो सकता है आप आगे चलकर रियल एस्टेट में कर दें, रियल एस्टेट में है तो एफएमसीजी में कर दें. सो you channelize your funds or invested in some other field. Number 9. Which of the following is best described as selling an asset and simultaneously buying the asset? So that is always called as arbitrage. अभी आपको आर्बिट्राज के बारे में बताया ही था कि एक एसेट को सेल करना एंड साइमल्टेनियसली बाइंग द एक्चुअल एसेट, मतलब वही सेम एसेट, उसका जो एक तो सिंथेटिक एसेट को सेल करना. सिंथेटिक मतलब कोई भी वो डेरिवेटिव भी हो सकता है, और एक्चुअल एसेट को बाय करना, और उस प्राइस डिफरेंस से आप प्रॉफिट डिराइव करते हैं, तो उस चीज को बोला जाता है आर्बिट्राज. नंबर 10. Which of the following causes the future price of an asset to increase, everything else held constant? कौन सा ऐसा फैक्टर है which causes the futures price of an asset to increase? ये बताना है आपको. So it is higher expected spot price, lower risk free rate. No, it is always the higher cost of carrying the underlying asset. वो जो हायर कॉस्ट है वो ही हमेशा इंक्रीज करती हैं फ्यूचर प्राइस ऑफ एन एसेट को. राइट, तो फ्यूचर प्राइस ऑफ एन एसेट आर बेसिकली इंक्रीज बाय हायर कॉस्ट ऑफ कैरिंग द अंडरलाइंग एसेट. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द राइट टू सेल? जब भी राइट टू सेल आएगा, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू पुट ऑप्शन. तो पुट बायर हैज गॉट द राइट टू सेल. Number 12. Which of the following is potentially obligated to sell an asset? अब बात हो रही है, एक तो होता है राइट मिलता है कॉल ऑप्शन बायर को और पुट ऑप्शन बायर को. राइट, कॉल ऑप्शन बायर या पुट ऑप्शन बायर. लेकिन जो ऑब्लिगेशन होता है, ऑब्लिगेशन वो होता है कॉल सेलर को यानी कॉल राइटर को, या फिर
पुट राइटर को, राइट, ऑब्लिगेशन इज ऑलवेज फॉर कॉल राइटर और पुट राइटर। अब कॉल बायर जो है वो बाय कर रहा है, तो बात हो रही है ऑब्लिगेशन टू सेल, वो कौन होगा, कॉल राइटर। सो वी हैव द राइट आंसर, दैट इज कॉल राइटर। तो समझ रहे हैं आप इस चीज को, जो राइट होता है, राइट, आई एक्सप्लेन इट वंस अगेन, समझना ध्यान से, इससे आपके जो कॉल पुट और इनके सेलर के डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सो यू मस्ट रिमेंबर अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। सी, राइट टू बाय वो होता है कॉल ऑप्शन बायर का, कॉल बायर वो प्रीमियम दे रहा है, या पुट बायर, दोनों में राइट मिल जाता है, इसमें राइट टू मिलता है बाय, इसमें राइट टू मिलता है सेल। लेकिन जो ऑब्लिगेशन है, जिसने प्रीमियम ले लिया उसके लिए ऑब्लिगेशन हो जाता है कि उसको वो काम करना ही पड़ेगा, वो होता है कॉल सेलर, सेलर को बोलते हैं कॉल राइटर और पुट राइटर। तो ऑब्लिगेशन कहां पे आ रहा है, इनके पास आ रहा है, कॉल बायर तो कर रहा है बाय, और यहां पर कॉल राइटर क्या कर रहा है, सेल, राइट, ये कर रहा है सेल, इसीलिए ऑब्लिगेशन टू सेल ये किसके पास आ जाता है, कॉल राइटर के पास, राइट। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। राइट टू सेल होता वो तो पुट बायर के पास होता, लेकिन ये जो राइट टू बाय है ये है कॉल के पास, राइट है, तो ये खरीदेगा तो कोई ना कोई तो बेचेगा ना, कौन बेचता है, कॉल राइटर बेच रहा है, तो कॉल राइटर मतलब कॉल सेलर, तो उसके पास ऑब्लिगेशन है कि उसको बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने क्या ले लिया उस चीज को बेचने के लिए, प्रीमियम, उसने प्रीमियम ले लिया है कि वो तो बेचेगा ही बेचेगा। राइट टू बाय मिलता है कॉल बायर को और ऑब्लिगेशन टू सेल मिलता है कॉल राइटर को। नंबर 13 पे ध्यान देना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स दैट ट्रेड ऑन शिकागो बोर्ड्स ऑप्शन एक्सचेंज। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का? द कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड, ये तो बिल्कुल सही है। इट इज इजी टू ट्रांसफर द कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी ठीक है बिल्कुल। देन ऑप्शन होल्डर्स मस्ट टेक फिजिकल डिलीवरी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, नो दिस इज नॉट करेक्ट। ये जरूरी नहीं है कि ऑप्शन होल्डर यानी ऑप्शन बायर फिजिकल डिलीवरी लेगा ही लेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को लैप्स भी कर सकता है और जरूरी नहीं कि कोई डिलीवरी ले। ऑप्शन राइटर्स आर रिक्वायर्ड टू पुट अप कोलैटरल, कोई कोलैटरल सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ऑप्शन होल्डर्स मस्ट टेक फिजिकल डिलीवरी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस विल नॉट क्लोज अ लॉन्ग पोजीशन इन अ कॉल ऑप्शन? कौन सा एक्शन जो है इनमें से वो क्लोज नहीं करेगा लॉन्ग पोजीशन को इन अ कॉल ऑप्शन? बाइंग अ पुट विद सेम स्ट्राइक प्राइस, सेम एक्सपायरी एंड सेम अंडरलाइंग एसेट, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉल ऑप्शन का एक्शन क्लोज करना है, या तो वो कॉल एक्सपायर हो जाए, राइट, इधर इट शुड एक्सपायर, या आप एक्सरसाइज कर लें, या आप सेल कर लें कॉल विद द सेम स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी एंड अंडरलाइंग एसेट। तो कॉल ऑप्शन को अगर लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग मतलब बाय कर रखा है, तो उसको क्लोज किया जा सकता है, या तो उसको एक्सपायर होने दें, या उसको एक्सरसाइज कर दें, या एक कॉल सेल कर दें उसी स्ट्राइक प्राइस की, उसी एक्सपायरी की और उसी अंडरलाइंग एसेट के ऊपर। सो दैट कैन ऑलवेज क्लोज द लॉन्ग पोजीशन, लेकिन आपकी कॉल ऑप्शन की लॉन्ग पोजीशन पुट ऑप्शन से स्क्वायर ऑफ नहीं होगी। नंबर 15, which of the following strategies will be more profitable if the price of the underlying asset is expected to decrease? इनमें से आपको बताना है कि which of the following will be more profitable if the price of the underlying asset is expected to decrease. जब भी decrease होगी ना, तो you should always buy a put. Buying a put gives you the right to sell. अगर आपने कोई पर्टिकुलर
राइट अर्न किया है 100 रुपीज़ पर सेल करने का, और अगर उस कमोडिटी की प्राइस पहुंच गई 70 रुपीज़ पर, तो आपके पास तो प्रॉफिट अर्न करने की अपॉर्चुनिटी होगी 30 रुपीज़ की। तो आपके पास अगर अंडरलाइंग एसेट की प्राइस डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये कि इनमें से अगर आपने पुट बाय कर रखी है, पुट मतलब राइट टू सेल अर्न कर रखा है, तभी आपको फायदा होगा। कॉल खरीदने पर बाय सेलिंग अ पुट, उन केसेस में फायदा नहीं होगा। सेलिंग अ कॉल पे भी कोई फायदा नहीं, उसमें तो केवल प्रीमियम मिल जाएगा। बट बाइंग अ पुट will be most profitable, right? Because you earn the right to sell। अगर आपके पास right to sell आ गया तो आप चाहोगे कि प्राइस हमेशा डिक्रीज हो। नंबर 15 या 16, which of the following investment strategies has unlimited profit potential? वो होता है बुल स्प्रेड में। बुल स्प्रेड के अंदर there is an unlimited profit potential, तो प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है बुल स्प्रेड में। प्रोटेक्टिव पुट, राइटिंग अ कॉल, कवर्ड कॉल, दे आर ऑल having limited profit potential, और बेसिकली they are trying to cover the risk। कवर्ड कॉल जो है वो रिस्क को खत्म करने के लिए, रिस्क को कवर करने के लिए यूज की जाती है। बट बुल स्प्रेड हैज गॉट अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल। नंबर 17, an option is an agreement between two parties to buy or sell asset at a fixed price and fixed date in the future। That is absolutely correct, it is true। नंबर 18, क्योंकि ऑप्शन का नेचर ही यही है, राइट? इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट एट अ फिक्स्ड प्राइस एंड फिक्स्ड डेट इन द फ्यूचर। नंबर 18 says that the exchange where nearly every one of the business and selling of option contracts takes place is called options marketplace। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, राइट? वो एक्सचेंज जहां पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्शंस मार्केटप्लेस। नंबर 19, अ कॉल ऑप्शन ओवर एंड ओवर अगेन सिंपली लेबल्ड अ कॉल is a financial agreement between two parties, buyer and seller of this option। This is also true। ये भी बिल्कुल ट्रू ऑप्शन है कि कॉल ऑप्शन बेसिकली इट्स अ फाइनेंशियल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। एक तो बायर होता है, बायर को क्या बोलते हैं हम? बायर को बोला जाता है होल्डर। और एक होता है सेलर, सेलर को बोला जाता है राइटर। एक खरीद रहा है, एक बेच रहा है। So it's an agreement between buyer and seller of option। Number 20, non-qualified stock options, NQSO। It is not the simplest type of stock options where the employee is required to pay ordinary income tax on the profit। It is also a true option। आपको ध्यान रखना है, ये एक simplest stock option नहीं, it's a complex one, right? Not everyone can do, and where the employee is required to pay ordinary income tax on profit। So if you earn a profit, you have to pay income tax on that। So number 20, it is true, right? So we come to an end of our MCQ set 1 and MCQ set 2। Hope you have learned concepts of arbitrage, hedging, call option, put option, stock futures, forwards in this lecture, and we are going to continue with some interesting questions of financial derivatives in our next lecture।